evening to each and every one of you present here with us today. So as you all know, it's Elder Hour and our Elders First Festival. So elders are synonymous to experience, forever support system, never ending more, a guiding light and kindness. I would like to thank each and every elder present here with us today for being a rock for us in between the storms. It is because of you all that we are standing tall and strong today. To thank the kindness and support that elders have been showering on us, we are celebrating India's first ever Elder Festival. So I welcome each and every one of you present here to this Elder Hour, and on this Learning Tuesday, where the topic is the art of mind control. There's a very famous quote that says, मन सब कुछ है जो आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है. Mind is the strongest master. Mind control may be needed for various reasons, and it can be looked through from various angles. As infants, we think the whole world is an extension of us. And as we grow and learn, we realize there is more to reality than ourselves. And we realize we have much to learn. The mind is the most powerful tool that humans possess, and it can even make the most impossible of the tasks possible. So today we have a very special guest with us, Mr. Dharamraj Das ji, who's joining us here on the art of mind control. And just to tell you all a little more about Mr. Dharamraj Das is Chief Manager Marketing at PEC Limited, Government of India Enterprise. He's an alumnus of IIT Roorkee and has more than 2 decades of experience in the field of international trade. He's also a public speaker on the subjects of foreign trade, personality development, and spiritual wisdom. He is also the co-founder of the Manas Mitra, an initiative to help caregivers to the mentally distressed. He is a frequent speaker at various chambers of commerce and management institutes on the subject of foreign trade. He also regularly participates in various discussions on cross-country trade strategies initiated by the Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce and Embassies, and foreign delegations. As a facilitator, he conducts workshops on soft skills such as time management, stress management, and communication skills, where he uses the wisdom from Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literature. So with this, I would like to welcome Dharamraj ji to this platform of Elder Hour. I know he has been with us earlier also, and every time we have had a wonderful, wonderful session with Dharamraj ji. So Dharamraj ji, welcome once again, and very happy to have you back with us. And of course, today you are taking a wonderful session on the art of mind control, because I think this is something that all of us would love to learn. So over to you for this. Thanks a lot, Rituji, for such a nice introduction to whatever you have said. And I would like to thank the audience here for their overwhelming response during the past sessions. क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला होती है, और यहाँ के एल्डर्स बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं. तो जो एसेंस होता है किसी भी सेशन का, वो प्रश्नों में और प्रश्नों के उत्तरों में होता है. तो इसलिए मैं एल्डर्स का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा. और जब जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, खासकर थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और साथ में थोड़ा आराम भी मिलता है कि एल्डर्स बहुत फॉरगिविंग होते हैं और बहुत इनकरेजिंग होते हैं, और फॉल्ट्स नहीं देखते हैं, उसमें से हंस की तरह जो अच्छी बातें हैं वही ग्रहण करते हैं. तो इसी के साथ फिर आज का सेशन हम यूं शुरू करेंगे कि पहले हम जो पुराने सेशंस हैं उनका थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि पहले 2 सेशंस में हमने क्या कवर किया, और फिर उसके बाद में इमीडिएटली हम आज का टॉपिक कमेंस करेंगे.
तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रार्थना करते हुए आज का सेशन शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो जैसा कि हमारे जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो डेडिकेटेड था एक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर एज को, और उसमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने समझा था कि भाई साइंस क्या कर रही है और जो साइंस अचीव करने की कोशिश कर रही है उसमें हम वैदिक विजडम से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि साइंस ये कोशिश कर रही है कि जो हमारा एम है वो है उम्र के साथ हेल्थ को भी बढ़ाना, ना कि उम्र के साथ सिर्फ एक डिसेबिलिटी के साथ जीना। साइंस ये भी कोशिश कर रही है ऐसी यूनिवर्सल मेडिसिन बनाने की जिससे बहुत सारी बीमारियां एक साथ दूर हो सके। साइंस स्टडी कर रही है सुपर एजर्स को, ऐसे लोग जो उम्र के साथ उनकी मेमोरी और मोबिलिटी नहीं घटती, और साइंस ने यह डिस्कवर किया कि उनके ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके साइज एज के साथ श्रिंक नहीं करते, उनके आपस के कनेक्शंस कम नहीं होते, और वो बहुत डिटरमाइंड होते हैं। उनको कोई भी काम दिया जाता है तो वो बड़े टेनेशियसली जब तक कर नहीं लेते तब तक गिव अप नहीं करते। हमने ये भी देखा कि जो 98 ईयर्स के लोग हैं उनको अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दी जाए तो कई गुना उनकी सीढ़ी चढ़ने की क्षमता और कोई भी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा कि जो एल्डर्स खासकर टीचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जहां उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ होता है तो उनका एक्टिविटी लेवल और उनका अवेयरनेस लेवल सब कुछ इंक्रीज करता है। और जो एल्डर्स मेंटल एक्टिविटीज और मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, लेकिन अगर हम मेंटल एक्टिविटीज और मेंटल एक्सरसाइजेस भी करते हैं तो हमारे एज के साथ मेमोरी का डिक्लाइन बच जाता है या बहुत मिनिमम होता है, या ये हेल्प करता है। ये साइंटिफिक रिसर्च ने डिस्कवर किया। फिर हम आए दूसरे सेशन पे। दूसरा सेशन डेडिकेटेड था हैप्पीनेस पे। तो अगेन जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च ने ये पाया कि भाई हमने देखा है कि लोग जो एक दूसरे से कनेक्शन, रियल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, आपस में एक बॉन्ड एस्टेब्लिश करते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार एस्टेब्लिश करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, अपनी स्थितियों को जो और अपने साथ के लोगों को एज इट इज जो एक्सेप्ट करते हैं, वो ज्यादा प्रसन्न है, ज्यादा हैप्पी है। और जो लोगों ने सेल्फिशनेस को त्याग के सेल्फलेसनेस का रास्ता अपनाया है, जो एग्जाम्पल हमारा बहुत परफेक्ट मिलता है कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ एक सेल्फलेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जहां पर हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ करें ना करें लेकिन हम उनके लिए हमेशा सदैव करने को तैयार रहते हैं, उसके बदले में हमें वो करने में सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी हासिल होती है। और ये भी पाया गया कि हम जितना दूसरों को देते हैं उतना ही हमें प्रसन्नता बदले में प्राप्त होती है। और ये चीज मैनेजमेंट रिसर्च ने भी प्रूव किया कि भाई अगर आपको पैसे की जरूरत है तो दान करो। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बिलियनर्स बहुत ज्यादा दान करते हैं। दान करने से उनका धन कम नहीं हो जाता और बढ़ जाता है। फिर एक बात ये भी डिस्कवर की गई कि जो हैप्पीनेस है वो इतनी सिंपल चीज नहीं है कि इतनी सिंपल सी बातों से हम उसका रास्ता पकड़ लें। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा खुश होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए काम उतना ही और मुश्किल हो जाता है। तो अब आज के सेशन में ये मुश्किल हम कैसे आसान करेंगे,
ये जो हमारी हैप्पीनेस की डिजायर है, जो कि हमें एज के साथ फिट रखेगी, हमारा यूथफुल प्रोफाइल रखेगी, वो हैप्पीनेस कैसे हासिल करनी है, वो रास्ता क्या है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हैप्पीनेस के सेशन में हमने ये भी कंक्लूड किया कि हमारी जो सचमुच की जरूरतें हैं और जो सिर्फ हमारी डिजायर्स हैं या सिर्फ वांट्स हैं, तो नीड्स और वांट्स में क्लियर कट हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि ये हमारी जरूरतें हैं, ये पूरी हो रही हैं तो मुझे सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये सिर्फ मेरी डिजायर है, ये पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके पीछे दुखी होना अनहैप्पीनेस को दावत देना है। और ये हमने पिछले सेशन में ये भी कंक्लूड किया कि अच्छे रिश्ते बनाना, अच्छे कनेक्शंस बनाना हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। और फिर हमने ये भी समझा कि कर्म अनुसार जो हमें जिंदगी में आपदाएं मिलती हैं, उसको हम आपदाओं को अगर कम नहीं कर सकते तो उनको फेस करने का तरीका जरूर सीख सकते हैं। तो उस डिस्ट्रेस को हैंडल कैसे किया जाए, ये हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप गर्मी के मौसम में गर्मी दूर नहीं कर सकते, लेकिन इतने पैसे जरूर कमा सकते हैं कि आप एसी खरीद सकें। तो इसलिए हमें मौसम बदलने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उतना सक्षम बनना है कि हमारे पास एसी हो जाए। तो उसी प्रकार से हमें जीवन में प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम नाकामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की आर्ट सीख लेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज के सेशन इसी के अगले कदम की ओर डेडिकेटेड है। और हमने पहले सेशन में भगवत गीता का एक श्लोक सुना था, दूसरे सेशन में भी भगवत गीता का वही श्लोक सुना था, और तीसरे आज के सेशन में भी हम उसी श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ऐसी बातें करते हैं कि अगर उनके एक कही हुई बात को ही हम डिस्कवर करने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है और बहुत सारा जीवन का ध्येय हमें अचीव हो सकता है। तो ये दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है जो कहता है, नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांत अशांतस्य कुता सुखम। यानी कि जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसकी जो बुद्धि है यानी इंटेलिजेंस है, वो ट्रांसेंडेंटल और दिव्य नहीं हो सकती, ना ही उसका मन यानी उसका माइंड स्थिर या स्टडी हो सकता है। जब तक किसी की बुद्धि इस मटेरियल एंटेंगलमेंट के परे नहीं है, जब तक उसका मन स्थिर नहीं है, तब तक उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक किसी के जीवन में शांति नहीं है, तब तक उसे प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इस श्लोक से हमने कंक्लूड किया कि अगर हैप्पीनेस, जिसकी हमने पिछले सेशन में बात करी थी, तो अगर हमें वो हैप्पीनेस हासिल करनी है तो हमारे जीवन में शांति चाहिए। हमने हमेशा लोगों को बोलते सुना है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से जीने दो। शांति इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हैप्पीनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजायरेबल चीज है। तो शांति की खोज करना तो परम आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर तो ना शांति है और ना प्रसन्नता है। तो अब इसी श्लोक में हमने क्या कंक्लूड किया, क्या भगवान से हमने समझा कि शांति के लिए क्या जरूरत है। एक तो स्टडी माइंड जरूरत है, और फिर क्या ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस जरूरत है। तो इन दोनों एस्पेक्ट में से पर्टिकुलरली आज हम स्टडी माइंड को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये स्टडी माइंड क्या होता है और शांति कब कह सकते हैं कि हमारा मन शांत है, यानी कि मन हमारा व्यग्र नहीं है, उद्विग्न नहीं है, एजिटेटेड नहीं है, एंग्शियस नहीं है, डिस्टर्ब्ड नहीं है। तो अब ये कब होता है कि हम जब किसी चीज की डिजायर के कारण बहुत परेशान ना हो रहे, उनकी जिंदगी में ये हो जाए हो जाए हो जाए। मेरे तो जीवन में सब कुछ हो गया, मैंने बच्चों की शादी कर दी, उनको सेटल कर दिया, लेकिन अब मेरे बच्चों के बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों का सेटलमेंट मैंने कर दिया, बच्चों के बच्चे सेटल हो जाएं,
मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम थी, मैंने अपनी टाइम पे सॉर्ट आउट करी, बच्चे की जॉब में कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो डिजायर के हम बिल्कुल हैंकर करते रहते हैं तो हमारे को उद्विग्नता होती है, परेशानी होती है। फिर ये तो है कि कुछ हमें चाहिए, अब कुछ है जो खो गया, जो था वो अब नहीं रहा, कोई व्यक्ति नहीं रहा, कोई वस्तु नहीं रही, तो हम क्या है उसको शोक करते हैं, उसके कारण परेशान रहते हैं। तो ये लैमेंटेशन कहलाता है। तब हमारा माइंड एट पीस नहीं होता है। मान लिया हमारी कोई प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूट में चली गई, अब उसके हृदय में हम परेशानी पालते पालते बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को तो बेसिक जरूरतें नहीं हासिल, तो हम क्या देखते हैं कि भाई हमारी बेसिक जरूरतों की सब चीजें हैं कि नहीं, और अगर नहीं होती हैं, कोई एक भी चीज मिसिंग होती है, तो हम बहुत मिजरेबल हो जाते हैं। और फिर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, या जो लोग पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते, इसी जन्म के कर्मों के कारण हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, या बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है समझ ही में नहीं आता क्यों आई, तो वो सफरिंग हमको लगातार एजिटेट करती है। तो उसके अंदर उसको हम कैसे हैंडल करें ये समझने की जरूरत है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज होती है तो हमें शांति नहीं रहती है, हमारी पीस डिस्टर्ब रहती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे सामने अगर खुशी का साधन भी होता है तो हम खुश नहीं हो पाते, कोई खुशी की खबर भी आती है तो हमें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि दिल के अंदर वो जो पहले के दुख है उसने घेर रखा है। हमारे जीवन का दुख हो, हमारे बच्चों के जीवन का दुख हो, या हमारे और धन धान्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी हो, वो हमारे दिल को घेर के बैठी रहती है। और उससे भी बड़ा, हमारे को सबसे बड़ा दुख है कि हमारे भाई बंधुओं के पास, मित्रों के पास हमारे से ज्यादा है, वो दुख का तो कोई अंत ही नहीं है, वो दुख हमारी खुशी को नष्ट करता रहता है। तो इस प्रकार से हमारी शांति का नाश होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो अब क्योंकि थोड़ा सा ये एनालिटिकल डिस्कशन हो गया, तो अब हम एक कथा सुनेंगे। कथा क्या है? कथा का सोर्स है, एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ किसका ग्रंथ है? भगवान राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम था योग वशिष्ठ। उसका लिखित वर्जन बाद में महामुनि वाल्मीकि ने किया, जिन्होंने रामायण की रचना करी थी। तो उसे योग वशिष्ठ महारामायण भी कहा जाता है। इस तरह से उसमें अलग अलग कथाएं हैं जो हमें जीवन का संदेश देती हैं। अब उसमें से एक कथा है जिसका, एक राजा की, जिसका नाम है राजा सिखीध्वज। और उनकी एक बहुत ही सुंदर रानी थी, और बहुत ही सुशील और बहुत ही स्पिरिचुअली अकम्प्लिश्ड रानी थी, जिसका नाम था महारानी चुड़लई। अब सिखीध्वजा और चुड़लई पति पत्नी, राजा और रानी के रूप में उस राज्य में राज्य करते थे। राज्य पूरी तरीके से धन धान्य से भरपूर था, प्रजा सुखी थी। अब ये जो रानी चुड़लई थी, ये क्या था? तपस्विनी थी, रोज स्पिरिचुअल साधना करती थी, और उसने स्पिरिचुअल साधना के माध्यम से अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, और उसको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी हो चुका था। और जिस तरह की सिद्धियों की बात होती है, जैसे आप लोग आरती में गाते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ठीक है, असवर दीन जाने की माता, तो वो जो अष्ट सिद्धि की बात होती है, जिसमें एक अणिमा सिद्धि होती है, यानी एटम की तरह छोटा हो जाना, महिमा यानी कि बहुत बड़ा साइज का हो जाना, लघिमा यानी बिल्कुल वेटलेस हो जाना, प्राप्ति यानी कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल करना, प्राक्यम यानी जो डिजायर करो वो हासिल कर लेना, इशिता यानी कि नेचर, ऑर्गेनिज्म जो भी इस प्रकृति में है उसको कंट्रोल करना, और वशिता यानी कि किसी भी दूसरे मनुष्य को कंट्रोल करना, वश करना। ये बड़ा पॉपुलर है, आज भी कुछ क्रूक्स या पाखंडी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो गरिमा यानी कि बहुत भारी, इस तरह की अनेक सिद्धियां, मतलब अष्ट सिद्धियां कही जाती हैं। तो ये सब भी उसने हासिल कर ली थी। लेकिन राजा क्या था? राजा वहां पर इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करता था, वो मन से दुखी रहता था। राजा को लेकिन इतनी नॉलेज थी कि भाई आपको अगर
अपने को बेटर करना है, हैप्पी होना है, तो आपको स्पिरिचुअल रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो राजा को ये लग रहा था कि भाई ये राज्य में राजा बन के ये सब संभव नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए। तो रानी ने उसको बहुत समझाया कि भाई जंगल जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि पति लोग अपनी पत्नी की जो नॉलेज है उस पर आराम से भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि पत्नियों को ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए राजा ने पत्नी की बात नहीं सुनी और सारा राजकाज, धन धान्य, मंत्री, नौकर चाकर, अपनी रानी, राजमहल सबको त्याग करके राजा चला गया जंगल, एक अंगोछा बांध के। बस खत्म, चला गया जंगल कि मैं वहां जाकर तपस्या करूंगा और फिर मैं स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल करूंगा, तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तो अब भाई साहब वो तो चले गए। तो रानी क्योंकि स्पिरिचुअली रियलाइज थी, उसका मन उसके वश में था, तो वो एजिटेट नहीं हुई राजा के जाने पे, बल्कि उसने पूरा राजकाज संभाल लिया। कुछ साल बीते तो उसने सोचा कि मैं जाके राजा की खबर लेती हूँ कि राजा ने कितनी प्रोग्रेस करी, कितनी साधना करी। तो रानी जंगल, आपने उसकी यौगिक सिद्धियों से उसने ये भी पता कर लिया कि उसका पति जंगल में कहाँ है, और फिर उसने अपनी यौगिक सिद्धियों के बल पर एक ऋषि का रूप धरा और उसका नाम क्या रखा, कुंभ मुनि। कुंभ यानी कि घड़ा, यानी कि कुंभ मुनि के नाम से वो वहां पर अपने पति को उसने विजिट किया। और जब उसके पति ने कुंभ मुनि को देखा, जो वास्तविकता में उसकी पत्नी थी, तो वहां पर उसने देखा कि भाई उसकी पत्नी यानी कि वो जो कुंभ मुनि हैं, वो जमीन से 1 फुट ऊपर चल रहे हैं हवा में। तो उसने, राजा ने उनको प्रणाम किया और फिर एक दूसरे से भाई हालचाल पूछा, आप कौन है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा मैं कुंभ मुनि। उन्होंने कहा मैं राजा था यहाँ पे, अब राजकाज छोड़ के तपस्या कर रहा हूँ। तो कहते तपस्या राजकाज छोड़ के आप क्यों कर रहे? कह रहे मुझे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहिए था ताकि मैं हैप्पी हो सकूं। तो उन्होंने कहा कि भाई हैप्पी हो गए? तो राजा ने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं इतने सालों से तपस्या यहाँ कर रहा हूँ, मेरी हालत वैसी की वैसी है, मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। मैंने तो सब कुछ त्याग दिया था, राजकाज त्याग दिया था, अपनी सारी फैसिलिटीज त्याग दी थी, अपनी रानी को त्याग दिया था, लेकिन फिर भी मेरी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों है। शायद ये मेरे को, ये जो झोपड़ी यहाँ बना रखी है, मुझे इसको भी त्यागना है। तो जाके अपनी झोपड़ी में आग लगा देता है राजा। फिर कहता है कि ओ, मैंने ये अपना लोट जैसा कुछ पहन रखा है, गमछा, ये भी मुझे त्यागना है। तो ये भी उठा के फेंक देता है, उसी आग में डाल देता है। कहता है देखो भाई, अब मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब तो मैं स्पिरिचुअली रियलाइज हो जाऊंगा। तो कुंभमुनि कहते हैं नहीं नहीं भाई, ऐसे स्पिरिचुअली रियलाइज नहीं हो सकते तुम, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के स्पिरिचुअली रियलाइज नहीं हो सकते, तुमने तो छोड़ा ही है, पकड़ा क्या? तो फिर राजा को समझ में नहीं आता। कहते अरे ओ, यानी कि मेरा अभी शरीर है और मैं ये ऐसे जंगल में रह रहा हूँ जहाँ पे सब बहुत बढ़िया है। तो एक वीरान में चला जाता है, कुंभमणि भी पीछे पीछे जाते हैं। कहते हैं कि अब मैंने वो जंगल जहाँ पे फल फ्रूट थे वो भी छोड़ दिया, तो अब मैं, कहते हैं नहीं अभी भी नहीं। तो कहते हैं कि मैं शरीर की बात करी थी, मैं शरीर अपना त्याग जाता हूँ, मैं पहाड़ से कूद जाता हूँ, अपना शरीर त्याग देता हूँ, तब तो मैं स्पिरिचुअली रियलाइज हो जाऊंगा। तो जब वो पहाड़ से कूदने जाते हैं तो कुंभमुनि, जो कि वास्तविकता में उसकी पत्नी है, वो जाकर रोकती है कि भाई ठुरको, आप इस तरीके से स्पिरिचुअली रियलाइज नहीं हो सकते, इस तरह से आप साधना करके आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बाहर की चीजों को छोड़ा है, लेकिन जो चीजें आपके मन में हैं, जो आपके मन का हिस्सा हैं, उनको तो आप अभी तक नहीं छोड़ पाए हो। क्या आपने उनको त्याग दिया है? क्या आपका मन आपके वश में है? आपका मन क्या स्थिर है? तो इस प्रकार से उनको उपदेश करती है। राजा भी पूछता है कि भाई आप, लगता है कोई अकम्प्लिश्ड मुनि है, कृपया मुझे गाइड करें कि ये मन को कैसे वश में करें, क्या मैं करूं ताकि ये मन वश में हो, और ये मन क्या होता है। तो जब तक ये राजा रानी को समझा रहे हैं कि मन वश में क्या होता है, तो हम भी समझ लेते हैं कि मन क्या होता है और वश में कैसे होता है। तो अब रानी ने राजा को समझाया कि मन
का जो सबसे बड़ा सूचक है वो है अज्ञानता, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचानते, क्या करना है वो नहीं जानते, किस चीज से अफेक्टेड होना चाहिए, किस चीज से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसकी चिंता करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, वो हम नहीं जानते। इस कारण से ही हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और फिर हमारी आदतें जो हमने सालों से एक्यूमुलेट कर रखी हैं, बुरी आदतें, सही काम ना करने की, गलत चीज में फंसने की, व्यर्थ की चिंता करने की, ये सब चीजें हमने एक्यूमुलेट कर रखी हैं। और जितनी हमारी डिजायर्स हैं जो जन्मों से या इस जन्म में फुलफिल नहीं हुई हैं, सब मन में नासूर बन के, घाव बन के पड़ी हुई हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चों को कई बार मन में, बचपन में खाने पीने की उनकी डिजायर स्थित इच्छित वस्तुएं ना मिले, उनका वो गम वो जिंदगी भर तक सबकॉन्शियस में उनके घुस जाता है। वो अपनी डिजायर्ड लड़की को गर्लफ्रेंड ना बना पाए, वो चीज उनके दिल में घुस जाता है। उनको डिजायर्ड मोटरसाइकिल ना मिले या बड़े होके कार ना मिले, वो वाली चीज उनको दिल में घुस जाती है। या उनका कभी अपमान हो गया हो या सम्मान ना मिला हो, उस चीज को लेके दिल में लोग बैठ जाते हैं। बड़ी परेशानी का वस्तु है कि हमने क्या है, अपने दुखी होने का सामान जिंदगी भर खुद ही एक्यूमुलेट किया है। तो यानी कि हमारे अंदर सीरियस प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रकार से रानी ने राजा को समझाया। तो अब हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता पर्टिकुलरली 6ठे अध्याय में सांख्य योग में भगवान इस मन के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, और इसमें हमारा यह भी उद्देश्य है कि आप इस कंटेंट को समझें ताकि आप बाद में भगवत गीता स्वयं पढ़ सकें और उससे अपना कल्याण कर सकें। तो सबसे पहला, जैसे हमने भी यही डिस्कस किया कि भाई हमारे माइंड को जो हमारी इच्छा है, डिजायर्स परेशान कर रही है। हमने अपना काम कर दिया, अपने फर्ज पूरे कर दिए, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनकी शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए। अब उनके बच्चों की चिंता भी हम कर रहे हैं, जो कि उनको करनी चाहिए। हमारे बच्चे अपने बच्चों की चिंता करें ना करें, हम करते रहते हैं कि उनका ये नहीं हुआ, उनका वो नहीं हुआ, दुखी परेशान रहते हैं। और फिर हम अपने बच्चों से दूसरे बच्चों को कंपेयर करते हैं, अपने नाती पोतों को दूसरे के नाती पोतों से कंपेयर करते हैं। और फिर क्या होता है, ये एनवी के कारण दुखी रहते हैं। कुछ हमारा नुकसान होता है जो हमने भी डिस्कस किया। ये सब चीजें माइंड को रेस्टलेस करती रहती हैं। और आप यकीन जानिए कि गुस्सा क्या होता है। गुस्सा होता है कि जब हमारी बहुत सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, तो धीरे 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 करके अनफुलफिल्ड डिजायर्स लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एंगर। जो हमारा फ्रीक्वेंट कहते हैं गुस्सैल हो गया व्यक्ति। गुस्सैल क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने हृदय में बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को पाल पोस के रखा है। और जो गुस्से वाला व्यक्ति क्या होता है, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड होपिंग दैट द अदर पर्सन डाइज। यानी हम गुस्से में क्या करते हैं, जहर खुद पी रहे होते हैं और सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जावे। इस जहर के कारण हम जहर मुंह से फूकेंगे सांप की तरह और दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। तो हमारे को क्या है, इस सब के कारण हम गुस्से के वशीभूत होके अपने आप को प्रसन्नता या एब्सेंस ऑफ प्रसन्नता तो छोड़ दो, डीप रिजेंटमेंट में ला देते हैं। और एक और बहुत बड़ा रीजन है माइंड को परेशान करने का कि हम हर व्यक्ति की गलती ढूंढते रहते हैं। हम अपने पति की, पत्नी अपने पति की, अपने बच्चों की, बच्चे अपने माँ बाप की, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गलतियां ही ढूंढता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा बिहेव करना चाहिए था, उसने मेरा अपमान किया, मेरी इज्जत नहीं करी। यही सोच सोच के दुखी हो जाना है हमने। और मान लिया हम किसी शादी में गए अपने रिश्तेदारों की, तो उसमें क्या होता है कि शादी का उद्देश्य में क्यों बुलाया जाता है लोगों को कि भाई नव वर वधु को हम आशीर्वाद दें, उनके मंगल जीवन की कामना करें और प्रसन्न हो, प्रसन्नता दें और प्रसन्नता लें। और हम जाके क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी वहां इज्जत नहीं हुई ढंग से, हमको ये नहीं पूछा,
हमने वो नहीं पूछा हमको। तो अब भाई वो घर वाला जो अपने इतने सारे अरेंजमेंट्स में लगा हुआ है, आपको कितनी चीजें पूछ सकता है या कितना माइंड कंसंट्रेट कर सकता है? आप क्या ऐसा कर पाए थे? आप कहते कि मैं शादी में गया, मेरी बेइज्जती हो गई। अब भाई बेइज्जती आपने अपनी खुद कराई है ऐसा सोच के, और दुखी होने का साजो सामान खुद इकट्ठा करके आप लाए हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहते हैं डिस्टर्ब होने के, अनईजी होने के तरीके। तो अब इसमें श्रीमद् भागवतम में एक बहुत पॉपुलर श्लोक है, वो कहता है प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधृता। यानी कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि ये जो लौह युग है, कलियुग, उसके अंदर लोगों की जिंदगी छोटी होगी, यानी जल्दी मर जाएंगे। आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले महीनों में कितने लोग इस धरती को छोड़ के चले गए। तो जीवन अल्प है, ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। दे आर क्वारलसम, हर छोटी बात पे झगड़ते हैं। आप भारत के ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, हर आदमी अब ड्राइविंग ऐसे करता है जैसे आपके ऊपर उसने युद्ध छेड़ रखा हो। जरा सा कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल तलवारें बाहर निकल गई। बाहर इतना परिश्रम करता है गाड़ी चलाने के लिए कि दूसरे पे चढ़ जाएगा, और घर पे लेजी, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन सुबह से शाम तक लिस्ट बना के देखिए कि हमने क्या अकम्प्लिश किया है, तो आपसे काम नहीं बनाते बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत लेजी हैं और मिसगाइडेड हैं, अजीब अजीब लोगों से गाइडेंस ढूंढते हैं। हम व्हाट्सएप के पोस्ट में गाइडेंस ढूंढते हैं और शास्त्रों को एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। और हम सबसे ज्यादा क्या कह रहे हैं, अनलकी हैं। ये भी कहते हैं कलयुग के जीवों का भाग्य बहुत खराब है, शास्त्र कह रहे हैं। वो कुछ एफर्ट करते हैं, उन्हें मिलता नहीं। एंड अबव ऑल दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, यानी उपाद्रता, यानी कि वो हमेशा डिस्टर्ब्ड हैं कलयुग के जीव, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो अब शास्त्रों ने हमारा कह दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बना दिया कि हम हमेशा परेशान रहते हैं, तो हम क्या करें। लेकिन शास्त्र जो बता रहे हैं कि कलयुग में डिस्टर्बेंस है, तो कलयुग में कई सारे हथियार भी हैं अपने आप को ठीक रखने के, वो भी तो खोजने। कलयुग बड़े बेनिफिशियल युग है, जहां आप बहुत ही कम एफर्ट से स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। आज के सेशन में हम वही समझने का प्रयास करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई हम तो बात कर रहे थे कि अपनी ओल्ड एज में हैप्पी कैसे रहें और यूथफुल कैसे रहें, बीमारी के बिना कैसे रहें। तो जैसे कि जो अब हम गुरु वशिष्ठ की बात कर रहे थे, वो भगवान राम के गुरु थे। तो भगवान राम ने उनसे एक बार प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कि बीमारियों का क्या कारण है। तो गुरु वशिष्ठ उस काल में भगवान राम को जो उपदेश करते हैं कि भगवान की राम, बीमारियां मन में सबसे पहले पैदा होती हैं, और जब हम ऐसी जहरीले विचार, दूसरों से घृणा, ईर्ष्या और जितनी नेगेटिविटी अपने मन में एक्यूमुलेट करते हैं, तो एक होती है मेंटल शीथ, यानी कि मनोमाया कोश, ये डिस्टर्ब्ड हो जाती है। हमारा मन डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उसके अंदर की ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दिस एजिटेट्स द प्राणमाया कोश, वाइटल एनर्जी शीथ, यानी कि हमारे जीवन का जो प्राण है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दिस डिस्टर्बेंस मैनिफेस्ट इन अनामाया कोश, यानी हमारे शरीर में ये बीमारी बन के प्रकट होता है। फिर आगे साधु जनों ने इसकी विवेचना करी है कि आयुर्वेद के हिसाब से 2 कारणों से बीमारियां होती हैं। एक है दोषज, दोषज यानी कि आपके बुरे कर्मों के कारण आपको सजा के रूप में मिलती हैं। अब कहते हो जी हम पुराने जन्मों में नहीं बिलीव करते, तो इतने उम्र में हमारे इस जन्म के भी तो बहुत सारे कर्म हैं, वो हमें रिएक्शन के रूप में मिल सकते हैं। और फिर दूसरा है कर्मज,
यानी कि हमने अपनी सब कुछ बुरे पास्ट कर्मों के हिसाब से के कारण बीमारियां नहीं होती, कुछ प्रेजेंट कर्मों के कारण भी होती है। प्रेजेंट कर्म यानी हमारा रूटीन ठीक नहीं है, खाने पीने का, सोने का, जागने का, या जो कुछ भी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए एडिक्वेट वो नहीं है, इस कारण से हम बीमारियां एक्वायर कर लेते हैं। तो ये डिफेक्टिव हैबिट्स के कारण होता है। और फिर क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन को हमने वश में नहीं कर रखा, मन अस्थिर कर रखा है, उसमें नेगेटिविटी भर रखी है। तो जब नेगेटिव मन है तो हमारे कर्म भी नेगेटिव हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसी के फल स्वरूप हमें बैड कर्मा में बीमारियां मिल जाती हैं। और जो हमारी आदतें हैं वो भी अगर मन स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमारी आदतें खराब है, तो हमें उसमें प्रेजेंट में बीमारियां मिल जाती हैं। तो ये गुरु वशिष्ठ ने जो नॉलेज हमें दी उसमें मन को प्राइमरी रीजन बताया है कि जो बेसिक रूट कॉज है हमारे प्रॉब्लम्स का। तो अब ये बात करते हैं कि भाई आप स्टडी माइंड की बात कर रहे हैं, तो स्टडी माइंड अगर हमारा है या नहीं है हमें कैसे पता? या कभी अगर स्टडी हो जाएगा तो कैसे पता करेंगे कि हमारा माइंड स्टडी है? तो इसके अंदर सबसे पहला जो सिम्टम बताया गया है स्टडी माइंड का वो है जेंटलनेस। यानी कि जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो किसी भी अवस्था में हम लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, एग्रेवेट नहीं होते हैं, एजिटेट नहीं होते हैं। अपना जो रिएक्शन है, जीवन में कुछ उलट पुलट हो जाए तो अपना रिएक्शन कंट्रोल रखते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल रहता है। और तीसरा सिम्टम है फॉरगिवनेस। हम माफ करना में बहुत जल्दी मचाते हैं कि आराम से लोगों को क्षमा कर देते हैं अगर हमारा माइंड स्टेबल है। फिर डिटर्मिनेशन, हम जो कार्य करते हैं उसमें हम डिटरमाइंड होते हैं, हार नहीं मानते, आराम से लगातार करते रहते हैं, बिल्कुल डिटैच होकर। फिर सिंप्लिसिटी, जिसका माइंड स्टडी है वो दिखावटी शोशेबाजी में ज्यादा उलझता नहीं, वो सिंपल रहने में ही यकीन रखता है और उसकी सिंप्लिसिटी सबको अट्रैक्ट करती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे, और वो दान करने में यकीन रखता है। मतलब सारे पॉजिटिव गुण अगर हमने अपने अंदर पैदा करने हैं तो हमारा माइंड स्टडी होना चाहिए। तो अब माइंड को अगर हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो माइंड कंट्रोल के बेसिक सिम्टम क्या है? तो अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बात करें कि अब जब हम माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो एक तो हमारे मन में चीजें इस प्रकार से स्थिर हों कि हम जो भी कार्य करें सुबह से शाम तक वो ठीक तरीके से चले, यानी कंट्रोलिंग आवर एक्शन। एंड जो कुछ हमारे पूर्व कर्मों के कारण, दूसरे लोगों के कारण जो भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं उसके बदले में जो हमारा रिएक्शन है, जैसे कैसे हम उसके रिएक्ट करते हैं, उस चीज को कंट्रोल करें। तो एक्शन और रिएक्शन का जो कंट्रोल है वो अचीव करना ही माइंड कंट्रोल है। और वो कैसे होगा कि जो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो चल रहा होगा उसी हिसाब से कंप्यूटर बाहर रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा। तो हमारे को माइंड को अंदर से ठीक रखना है, तभी हमारा एक्शन और रिएक्शन ठीक रहेगा। अब भगवत गीता में भगवान फिर क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो मन दिया गया है अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए दिया गया है। A man should elevate himself by his own, not degrade himself. The mind is friend of the conditioned soul and his enemy as well. साधु जन कहते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि हमारे वो जीवन को हर स्थिति में परफेक्शन दे सकता है, हर स्थिति में स्टेबल कर सकता है, बुरी से बुरी आपदाओं में हमको स्टेबल रख सकता है। एंड दैट इज सिंपली अ फैक्ट। अगर आप वेदों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित प्रोसीजर फॉलो करें तो आप रियली में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जीवन की विकट से विकट आपदाओं में आप बिल्कुल स्टेबल, काम, क्वाइट रह सकते हैं। तो जब मन की ऐसी दशा होती है तो मन आपका मित्र होता है। और लेकिन छोटी छोटी बातों पे द्विग्न हो जाना, छोटी से छोटी राई का पहाड़ बना लेना, तो मन क्या है? हमारा शत्रु है। और फिर
भगवान क्या कहते हैं कि जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, मन उनके सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो उसने अगर नहीं कर पाया है तो सबसे बड़ा ही शत्रु है। अब हम पहले भी जो बात करी थी कि मन को चेक कैसे करें, कि अगर जो व्यक्ति दुख में भी स्टेबल रहता है और जब सुख की बात आती है तो बिल्कुल ऐसे हल्ला बोल नहीं बोल देता है, हैप्पी होता है आराम से, तो उसका मन वश में कहा जा सकता है। आप लोग भी अपने चारों तरफ लोग देखते होंगे कि कुछ लोग हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती बड़े कूल रहते हैं, आप उनसे इंप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका मन वश में है, वो ऐसे गंदा रिएक्ट नहीं करते, एंड वही अपने आप को लॉन्ग टर्म में स्टेबल और हैप्पी रख पाते हैं। और भगवान फिर कहते हैं कि सिम्टम क्या है, जो अभी हमने बात करी कि दुख और सुख में, अपमान और सम्मान में, दोनों में, जैसे कि भाई किसी का सम्मान हुआ तुम यार बहुत इतरा रहे, वैसा नहीं, और अपमान हुआ तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर गए, ऐसा नहीं। दोनों ही स्थिति में समान स्थिति अगर व्यक्ति की बनी हुई है तो ही उसका हम जान सकते हैं कि मन वश में है। तो यानी कि हमने टेस्ट कर समझ लिया कि मन वश में होता है तो क्या स्थिति होती है, मन जब गड़बड़ होता है तो क्या स्थिति होती है। दो चीजें हमने समझ ली, अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसको, मन को वश में करते कैसे। तो अब भगवान फिर से प्रोसीजर भी बताते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स अभी थोड़ा सस्पेंस से सुनने हैं कि भगवान सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई अगर आपको ये कार्य करना है तो एक जो कुश ग्रास होती है यानी घास की चटाई पे एक मुलायम कपड़ा बिछा के ऐसे स्थान पर जो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, किसी शुद्ध सेक्रेड प्लेस पर हो, और उस पर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ के तपस्या करनी है। कैसे? अपनी इंद्रियों को वश में करने की, अपने हृदय में शुद्ध करने की, और भगवान कहते हैं मुझ पर स्थिर करने की। यानी कि तपस्या का उद्देश्य क्या है कि भगवान पे कंसंट्रेट करना है, हवा में कंसंट्रेट नहीं करना है, भगवान पे कंसंट्रेट करना है। ये भगवत गीता में क्लियर 6 अध्याय के 11वें-12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझ पर कंसंट्रेट करना है। सतयुग में तपस्या करके लोग भगवान पे कंसंट्रेट करते थे, ठीक है, तो ये प्रोसीजर करना है। और कैसे? कि अपना शरीर सीधा, गर्दन सीधी, सर भी सीधा, एक स्ट्रेट लाइन में, और आंखें ना बंद है ना खुली हैं। बहुत लोगों को लगता है आंखें बंद करके तपस्या होती है, ना जी। आंखें खुली होके, ना जी, हाफ क्लोज में तपस्या होती है। और क्योंकि अगर आप आंखें बंद करोगे आप सो जाओगे, जगह रहोगे तो आंखें पूरी तरह खोलोगे डिस्ट्रैक्ट होगे। हाफ ओपन आईज, टिप ऑफ द नोज, अपनी नासिका, अपनी नाक के टिप पे अपनी आंखों से देखना है लगातार। और फिर ऐसी अवस्था में और कैसे अपने मन को वश में करना है, सभी भयों से मुक्त होके, और ऐसी तपस्या में कोई भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। एंड वन शुड मेडिटेट अपॉन मी, यानी भगवान कहते हैं मुझ पर अपने हृदय से मेडिटेट करना, तपस्या करनी है। और ये आपके जीवन का अल्टीमेट गोल है। वैसे आप लोग अभी थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ, सस्पेंस पे रखना, ये बहुत भारी प्रोसीजर है। तो ये भारी नहीं है क्योंकि अब अर्जुन इसमें अभी ट्विस्ट लाने वाले हैं। तो अब कह रहे हैं भगवान कि जब आप ऐसा ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली आप उस दशा में पहुंच जाओगे कि आपका मन, जैसे कि जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, कि जिस व्यक्ति का मन वश में रहता है उस व्यक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और आपको दैनिक जीवन में भी क्या करना है कि, और तपस्या के दौरान, कि जब मन इधर उधर भटके तो उसे पकड़ के वापस लाना है, और तब आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। तो आप इतनी इतनी भारी बातें सुनकर डरे ना, क्योंकि इसके बाद अर्जुन रिस्पांस देने वाला है। अर्जुन कहता है हे भगवान, ये जो आपने योगा का प्रोसीजर बताया है ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और बहुत कठिन लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा तो मन बिल्कुल ही, कैसे मन को
मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए मन को ही फोकस करें। अरे जब मन कंट्रोल में है नहीं तो फोकस कैसे करेगा? और ये कौन व्यक्ति कह रहा है? साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, अर्जुन। अर्जुन जब स्वर्गलोक में गया था तो उनकी मुलाकात अप्सरा उर्वशी से हुई। अप्सरा उर्वशी कौन थी? बॉलीवुड की आपकी हीरोइन नहीं है अप्सरा उर्वशी, वो मिस हेवेंस है, यानी कि स्वर्गलोक की सबसे सुंदर स्त्री। वो अर्जुन को इनवाइट कर रही है और अर्जुन उसको प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं जी, मैं आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहां किसी स्त्री को जरा सा देख के लोग इधर उधर भटक जाते हैं, पोस्टर देख के हिल जाते हैं। और अर्जुन क्या है? ब्रह्मांड के सबसे सुंदर स्त्री को देख के हाथ जोड़ रहा है। वो व्यक्ति है जिसका मन अल्टीमेटली वश में है। ऐसा व्यक्ति भगवान को क्या जवाब दे रहा है कि भगवान ये प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है मेरे को। और फिर अर्जुन क्या कह रहा है? बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्स एवसु दुष्करम। यानी कि हे भगवान, ये जो माइंड है ना, ये बहुत ही चंचल है, उद्वेग कारक है, दुराग्रही है, बात ही नहीं मानता और बहुत ही बलवान है। और इसको सबड्यू करने की, ऐसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं एक बार जो प्रचंड वायु है उसको वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में करने की बात मेरे लिए बहुत मुश्किल दिख रही है। तो अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन उस कैपेसिटी का व्यक्ति है जो प्रचंड वायु को कंट्रोल कर सकता है। वो मन के बारे में ये ओपिनियन रख रहा है। तो आप कहोगे कि भाई इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जब अर्जुन जैसे लोगों की ये ओपिनियन है तो हम लोग तो टिक ही नहीं सकते। लेकिन इसमें भी आगे भेदों में भेद है जो हमारा आगे रिवील होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि अशंशम ही महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तु कौन्तेय वैराग्यं च गृहीते। यानी कि अनडाउटेडली जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है कि मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है। लगातार अभ्यास करके और लगातार प्रैक्टिस करके अटैचमेंट के द्वारा ये संभव किया जा सकता है। और हमने जीवन में देखा कि ये जीवन जीना, जिंदगी भर एक तरीके से कमा के अपने परिवार का पेट भरना, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, इस सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, परिवार खानदान के साथ सामंजस्य बैठाना, बीमारियों से लड़ना, ये सब आसान है क्या? सब कुछ भी आसान नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ बहुत ही मुश्किल है, दुष्कर है, हमारे दुख देता है। तो उसी प्रकार से हम जब उतने कठिन कार्य अकम्प्लिश कर सकते हैं तो भगवान के बताए हुए तरीकों से हम मन को वश में करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो अब मन जिसको प्रयास करना है, कहेंगे भाई अगर बीमारी ठीक करनी है तो भाई इसके टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। तो हम मन के बारे में कुछ कुछ बड़ा शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। 3 टेस्ट होंगे मन के। पहला कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर में क्या होता है, हमने बचपन में जब कंप्यूटर हमें 4वीं 5वीं में पहली बार पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं। कहते हैं कि इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर को हम कुछ जानकारी देते हैं, और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर उसको कुछ प्रोसेस करता है जानकारी को, और कुछ हमें आउटपुट देता है, यानी कुछ हमें प्रोसेस करके जानकारी देता है। तो यानी कि हमारा जो शरीर है वो कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ सूंघता है, कुछ हाथ लगाता है, तो हमारे शरीर को इनपुट मिलता है, फिर उसी के माध्यम अंदर प्रोसेस करते हैं। और फिर हमारे मन यानी कि सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी वहां पे 3 हिस्से बताए गए हैं। सीपीयू में एक होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो लॉजिक के फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर एक मेमोरी यूनिट, यानी कि सारी याददाश्त, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी रखता है। और एक ये रहता है ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, जो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग की
बताती है कि भैया ये जानकारी अगर है तो ये करना है। तो इसीलिए कृष्ण बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस की, जो अल्टीमेटली आपका डिसीजन मेकर है आपके माइंड के अंदर, वो किस प्रकार का है, वो आपको सही फैसले देगा कि गलत फैसले देगा, और उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। एक्शन रिएक्शन यानी जो हमारा आउटपुट है वो उसी के पे आधारित होता है। तो अब उसके अलावा शास्त्रों में एक और कंपैरिजन दिया हुआ है कि एक रथ है। रथ क्या है? हमारी बॉडी। रथ पे एक सवार व्यक्ति है जो हमारी आत्मा है, यानी कि हम खुद है। उसको तो हम भूल जाते हैं कि ये कुछ एग्जिस्ट भी करता है। और जब व्यक्ति खुद ही, जो पैसेंजर को ही भूल जाता है, उसकी ट्रैवल सर्विस तो चल ही नहीं सकती ढंग से। हम सोल को ही भूल गए। और फिर जो हमारी इंटेलिजेंस है, यानी कि वो डिसाइड करती है कि घोड़ा किस तरफ जाए, उसके लगाम किस तरफ खींचनी है, वो हमारा इंटेलिजेंस है जो डिसीजन मेकर है, हमारा ड्राइवर। तो ड्राइवर अगर ठीक हो तभी रथ ठीक चलेगा। और जो घोड़े की, वो जो आपकी रस्सियां होती हैं, वो उसको माइंड बोला गया है, क्योंकि वो आपका कनेक्शन होता है आपकी इंटेलिजेंस और आपके सेंसेस। और घोड़े हैं आपके सेंसेस 5: आईज, ईयर्स, नोज, स्किन। और ये सब चीजें आपकी कंट्रोल माइंड करता है। और अल्टीमेटली क्या कंट्रोल होता है? आपका रथ, आपकी फिजिकल बॉडी। तो इसके अंदर हमें अपने ड्राइवर को ठीक करना है, और अपनी जो रस्सियां हैं वो ड्राइवर के कंट्रोल में ठीक से होनी है। तो हमारा जो सवारी है, यानी हमारी आत्मा है, ठीक ठीक चलेगी। नहीं तो रथ इधर भागेगा, उधर भागेगा, उल्टा गिर जाएगा। एक्सीडेंट हो जाते हैं रथ के। ऐसा कोई थोड़ी कि कार के ही होते थे, रथ के भी हो जाते थे। तो अब इसके अंदर ये बताया गया है कि भगवान एक और बात तीसरे अध्याय में रिवील करते हैं कि ये जो शरीर है, यानी डल मैटर है, ये जो सेंसेस हैं वो उनसे सुपीरियर है। यानी कि हमारे जो घोड़े हैं वो रथ से सुपीरियर है, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं सुपीरियर है। और जो हमारा मन है, माइंड है, वो सेंसेस को कंट्रोल करता है और सेंसेस से इनपुट लेता है और सेंसेस को इनपुट देता भी है। तो वो उससे सुपीरियर है, और इंटेलिजेंस उससे भी हायर है, और सोल उससे भी हायर है। यानी कि ड्राइवर को आदेश देना और ड्राइवर को कंट्रोल में रखने वाली सोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोल सो रही है, इसलिए सब तबाही मची हुई है। हमने अपनी आत्मा को इतना नेग्लेक्ट किया, इतना नेग्लेक्ट किया, इतना नेग्लेक्ट किया कि हमारी आत्मा भूखी प्यासी बिल्कुल कोमा में है, और हमारा माइंड रूल कर रहा है। ड्राइवर इंटेलिजेंस वो बीमार पड़ा है। इस कारण से हम अपने जीवन में इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हिंट लेना चाहिए कि अगर हम आत्मा को जागृत करते हैं, आत्मा को एक्टिवेट करते हैं, तो सब कुछ फॉल इन प्लेस करने लगता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। हम तो उस रथ को ही अपना शरीर, अपनी बॉडी, सब कुछ उसी को खुद को माने हुए हैं कि हम ये रथ हैं, और रथ में सवारी की कोई चिंता नहीं है। तो अगर पहला स्पिरिचुअल रियलाइजेशन यही है कि अगर हम ये रथ नहीं हैं, हम इसका ड्राइवर भी नहीं हैं, हम तो इस पे बैठे हुए पैसेंजर हैं। अगर हम ये चीज रियलाइज कर जाते हैं तो वहीं से सब कुछ ठीक होने लगता है। अब एक और एग्जांपल है। तो इसके अंदर आप ये सोचिए कि कोरोना का समय चल रहा था, लोग घर पे थे लॉकडाउन में, और माताएं खाना बनाते बनाते दुखी। मतलब सुबह दोपहर शाम सर खाना, एंटरटेनमेंट के लिए भी खाना बन रहा है। तो घर पे पति या आदमी, बच्चे, सब लोग अब दिन भर कोई काम नहीं, क्या करें, मतलब कुकरी के वो चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं, तरह तरह के डिशेस बनाना देख रहे हैं। और उनको बाकी चीजें अपनी मदद से कहते हैं कि भैया आप बिल्कुल आराम से शांत रहो, डोंट इंटरफेयर करके। और फिर क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स तरह तरह के, ये भी पता नहीं कहाँ से कैसे खरीदना है, उल्टी सीधी वेबसाइट से ऑर्डर कर देते हैं, बासी सब्जी दे जाता है, और किचन में उल्टा पुल्टा खाना बनाने लगते हैं, और फिर परोस देते हैं, कहते खाओ, और वो खाने लायक नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका शरीर है वो समझ लीजिए कि
वो डल मैटर है। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है कि यानी कि वो जो सामान आपने प्रोक्योर किया, वो किसने प्रोक्योर किया? आपके सेंसेस ने देखा, प्रोक्योर किया। और आपका जो माइंड है वो किचन में जाके खाना बना रहा है, उसको आता नहीं। इंटेलिजेंस यानी जो मदर है, जिसको खाना बनाना आता है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उल्टा सीधा खाना बन रहा है। और फिर लोगों को खा रहे, कह रहे जी हम बीमार हो गए, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। तो और इसके अंदर हमें ये समझना होगा कि ये जो उल्टी पुल्टी व्यवस्था होती है वही हमारे दुखों का मेन कारण होती है। तो जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो घर की माता है, वो ऑर्डर में हो, वो चीजों को बताए कैसे क्या करना है, तो घर ठीक से चलता है। अगर माता की गाइडेंस नहीं होगी तो घर उलट पुलट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंस है, और माता क्या करती है, जो घर भर के लोगों का ध्यान रखती है, तो उसी प्रकार से हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी सोल यानी कि घर के लोगों का ध्यान रखेगी, तभी वो माइंड को सही एक्शंस करने के लिए प्रेरित करेगी, तभी एक्शन रिएक्शंस ठीक होंगे और तभी चीजें ठीक से चलेंगी। तो हमारे को क्या है, सब्जियां ठीक खरीदनी, तभी खाना ठीक बनेगा। सड़ी हुई सब्जियों से कभी अच्छा कुक भी खाना ठीक नहीं बना सकता, ये बिल्कुल गिवन फैक्ट है, आप किसी से भी पूछ लो। तो अब एक बहुत अच्छा एनालिसिस है भगवत गीता में भगवान करते हैं, जिससे हमें ये फर्दर, अब अभी तक की एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, अब नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि while contemplating the objects of the senses, person develops attachment for them। हम ऐड देखते हैं तो वो चीज खरीदने का मन करता है, जो चीज देखते हैं उससे अटैचमेंट होता है, उसमें आनंद हम खोजने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारी डिजायर ये रहती है, हमने कोई खाना देखा, पोस्टर लगे रहते हैं बड़े बड़े पिज्जा के, इन्हें खाएंगे, फिर खाने की इच्छा रहती है और खाने की इच्छा करती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो खाने की एक चीज है, लोग मूवी देखने से लेके मतलब हर तरह की डिजायर्स, पर्टिकुलरली सेक्सुअल डिजायर्स में फंस जाते हैं, और वो पूरी नहीं होती कभी भी, जितना भी पूरा करने की कोशिश करो नहीं होती है। तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो अंदर क्रोध आता है, एंगर। और जब एंगर आता है तो आदमी भ्रमित होने लगता है। आपने गुस्से व्यक्ति को देखा हो, वो ठीक से चीजों को समझ नहीं पाएगा, ठीक से ना बात कर पाएगा। और जब आदमी का क्रोध हद से बढ़ जाता है, वो भ्रमित होने लगता है, तो उसकी याददाश्त इफेक्ट होने लगती है। मेमोरी और मोबिलिटी की हम बात करते हैं, शरीर को नेग्लेक्ट करके हमने जीवन भर अपने शरीर को बुरी स्थिति में लाए, और ये माइंड को नेग्लेक्ट करके अपनी मेमोरी को बुरी स्थिति में लाए। कभी टेक केयर नहीं करी माइंड की, तो मेमोरी आज इफेक्टेड हो रही है। और कहते हैं कि जब मेमोरी, याददाश्त, आपको सही गलत चीजें याद ही नहीं रहती, तो आपकी बुद्धि भी खो जाती है, खराब नहीं, खो जाती है। और जब ये ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमारा संपूर्ण पतन हो जाता है, भगवान ये कह रहे हैं। तो हम क्या ने कि भैया जो चीज देखते हो इंटरनेट पे, नॉवेल्स में, बुक्स में, टीवी में, बाहर निकल के जिन लोगों से एसोसिएट करते हो, संगति सबसे बड़ी चीज है, वो लोग आपको इफेक्ट करेंगे। जो चीज खाते हो, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को, आपके मन को, आपकी आत्मिक को, सबको इफेक्ट करती हैं। जो आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हो, आजकल तो इंटरनेट और टीवी पे देख देख के लोगों ने अपने मन को पूरा जाम कर रखा है। ना उनके पास टाइम बचता है, ना बुद्धि बचती है कुछ ठीक करने के लिए। जैसे रेडियो होता है ना, किस चैनल से ट्यून करेंगे आप, वही चैनल बजने लगेगा। या टीवी में आप देखिए, रिमोट आगे बढ़ाइए, चैनल चेंज। तो भाई कौन सा चैनल देखना है, ये आपकी चॉइस है। उसी तरीके से क्या इंटरनेट पे देखना है, आपकी चॉइस है। किन लोगों से एसोसिएट करना है, आपकी चॉइस है। वैसे ही आपकी बुद्धि बनेगी। और यही सब डिस्टरबेंस के कारण है। जितनी कंज्यूमरिज्म से बड़े पोस्टर्स या चीजें देखोगे, उतनी डिजायर्स बनी। बच्चों को तो आज
मोबाइल खरीदते ही दूसरा मोबाइल खरीदना होता है, एक से दूसरा लैपटॉप, इसी में वो बेचारे दुखी हैं। तो ये सब चीजें आपको अपना सोशल मीडिया आपका देखना, एंटरटेनमेंट करना, आज के सेशन से आप पहला इनपुट ले सकते हो। सबसे पहले इसका ध्यान रखना है, ये आपको दुखी करने वाले साधन हैं। अब अगेन ये बात आता है कि भैया ये तो कंट्रोल ही नहीं होता, हर बार पे तो मोबाइल उठा लेते हैं। तो कैसे ये कंटेंट को कंज्यूम करने के थ्रस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए? ये कहना आसान है, हमारा तो जीने का सहारा ही यही है। जब देखो तब बोर होते रहते हैं, परेशान हो रहते हैं, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो अब ये थ्रस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए जो अल्टीमेटली आपके मन को इफेक्ट कर रहा है? तो अब भगवान खुद कह रहे हैं, मतलब दूसरे अध्याय में 60वें श्लोक में, कि जो हमारी इंद्रियां हैं इतनी मजबूत हैं, इतनी स्ट्रांग हैं, कि जो व्यक्ति उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसको धक्के में उड़ा ले जाती है। फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी समझदारी से आपको पता है ये खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये कंटेंट मेरे को रात में नहीं देखना है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, या जो कुछ भी ये सब बकवास चीजें हैं, इससे मेरा आगे मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं ये सब देख के, या ये व्यक्ति से जब भी मेरे साथ बैठता है तो मेरा मूड खराब कर देता है, इसके साथ मुझे नहीं एसोसिएट करना है। लेकिन नहीं, हम बार बार वही कार्य करते हैं। तो अब इसमें कछुए का एग्जाम्पल दिया गया है कि कछुए का भगवान एग्जाम्पल देते हैं। कछुआ जैसे हाथ पैर अपना मुंह अंदर से कोड़ लेता है, कछुए की तरह हमको प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे प्रैक्टिस करनी है बस अभी थोड़ी देर में रिवील हो रहा है। और आई गेस अभी 8:25 हो रहा है। आई ट्राई टू वाइंड अप इन 5 मिनट्स। तो अब क्या है कि अब हम तो भाई वो कुंभ मिनी की कहानी सुन रहे थे, तो कहानी भी तो वाइंड अप करनी है फटाफट। तो अब आपको हम वापस ले चलते हैं कि वो महारानी चुड़ैल और कुंभ मुनि, जिनको कुंभ मुनि ने अपने पति को, यानी कि महारानी ने अपने पति को मन में वश करने की नॉलेज दी। तो फिर राजा शिखीध्वज ने कुंभ मुनि को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया। और फिर उन्होंने ये बताया कि भाई तुम्हें क्या करना है, कि भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, भगवान का पूजन करना है, वंदन करना है। इससे क्या है, आप अपने हृदय को शुद्ध कर सकोगे। और वो जो जगह है जहां पे बकवास चीजें घेरने की कोशिश करती हैं, वहां पर भगवान के रूप गुण लीलाएं जगह घेर लेंगी। जैसे आपने लोकल ट्रेन में देखा होगा कि ज्यादातर लोग बैठे रहते थे, उन्हें कोई उठाता नहीं। अब पता चला कोई उठ के गया नीचे पानी पीने या बाथरूम शुशु करने गया, वैसा कोई मजबूत आदमी आके वहां बैठ गया। अब वापस आके हिम्मत भी नहीं हो रही कहने की कि भाई ये मेरी सीट थी। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि आपके मन में जब वो घर करने लगता है, तो ये जो राग द्वेष है ये वापस आके हिम्मत नहीं होती वो कहने की कि जो उठ जाओ, मैं यहां बैठा था। तो अब राजा इस प्रकार से सब चीजें जो उसकी पत्नी बताती, क्योंकि पत्नी बहुत पहले से रियलाइज थी, उसने अपने मन को वश में किया हुआ था प्रॉपर प्रोसेस से। तो अल्टीमेटली उसका माइंड, वो कहता एक्सपीरियंस करता है धीरे धीरे कि उसका माइंड भी स्टेबल हो रहा है और अंदर से उसकी प्रसन्नता जाग रही है। लेकिन अब रानी को यह टेस्ट लेना था अपने पति का कि भैया इसका माइंड वाकई में स्टेबल हो गया, कल अभी थोड़ी देर में लुढ़क तो नहीं जाएगा। तो रानी क्या करती है, दिन में तो कुंभ मणि बनती है और रात में एक बहुत ही सुंदर कामुक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। और देखता है कि उसका पति डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है उसको देख के। तो और पति को बताती है कि भैया मुझे दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया था कि मैं रात में ऐसी स्त्री बन जाऊंगी। तो भाई अब वो रात में स्त्री देखती है कि भाई उस स्त्री को देख के भी उसका पति का माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, स्टेबल है। तो फिर कहते हैं अब लेवल 2 टेस्ट। कहते हैं कि ऐसा है कि भाई मैं जब ये रात में स्त्री बनती हूँ तो मेरे को डिजायर्स परेशान करती हैं।
तो हम लोग क्या है कि गंधर्व विवाह कर लेते हैं, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो जो लोग गंधर्व विवाह हो जाता है, यानी कि उसको मतलब उस स्त्री के साथ एसोसिएट करने का लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन फिर भी राजा बिल्कुल स्टेबल रहता है, कोई भी एक्शंस ऐसे नहीं करता है जो इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड को दर्शाएं। रानी कहती लेवल 2 पार, लेवल 3 क्या करता है, वो इंद्र का रूप धारण कर लेती और कहती है कि भाई राजा, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे इस प्रैक्टिस से हम बहुत प्रसन्न हैं और स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारा संग करना चाहती हैं, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो राजा उन इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह की किसी संग की आवश्यकता नहीं है, आपके आने के लिए, इस ऑफर को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग। मैं अंदर से प्रसन्न हूँ, भगवान की लीला श्रवण करने, भगवान का नाम लेने में प्रसन्न हूँ, मुझे बाहर से कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब रानी कहती है कि भाई ठीक है, अब ये एक फाइनल टेस्ट ले लेते हैं। तो रानी एक ऐसा दृश्य पैदा करती है कि वो जो कामुक स्त्री और एक और कोई परपुरुष, यानी कि इन दोनों ने गंधर्व विवाह तो कर लिया है उस सेटअप में, तो वो दोनों संग कर रहे हैं। तो ये फिर जैसे ही राजा देख लेता है, वो अपना इल्यूजन कैंसिल करके उसके पास आती, कहती कि भाई मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं रात में, दिन में कुंभमणि, रात में स्त्री का वेश धारण करती हूँ तो मेरे को कंट्रोल नहीं होता। तो राजा कहता कि कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कुछ भी, अगर ये श्राप से आप बने हो स्त्री, और ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान परफेक्ट करता है सब कुछ, तो आप इसको एंड्योर करो, जो स्थिति है मैं इससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तब रानी को यकीन हो जाता है कि राजा वाकई पूर्ण रूप से उसका मन को वश में कर चुका है। तब रानी वास्तविक रूप में आ जाती है और फिर राजा से कहती है, सब कुछ बताती है कि ये सब कुछ मेरा ही रचा हुआ था। तो राजा से पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो, इस जंगल में रहना चाहते हो कि राजमहल जाना चाहते हो। तो राजा जवाब देता है कि हे रानी, तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी गुरु भी, इसलिए गुरु के आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। मैं दोनों ही स्थिति में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं राजमहल में रहूं चाहे जंगल में रहूं, तो जो आप मेरे को आदेश करोगी मैं वही कार्य करूंगा। तो फिर वो रानी के साथ वापस राजमहल में चला जाता है। तो यानी कि उसको कोई चीज गिव अप करके परफेक्शन की प्राप्ति नहीं हुई, उसको भगवान का जो तत्व है वो हृदय में उतार को परफेक्शन की प्राप्ति हुई। खाली चीजों को छोड़ देने से काम नहीं होता, कुछ श्रेष्ठ पकड़ना पड़ता है, हायर टेस्ट पकड़ना पड़ता है, तब जाके लोअर टेस्ट छूटता है। तो अगेन अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारा मटेरियल माइंड है, जो सोशल मीडिया के कंटेंट या गलत लोगों के एसोसिएशन या जिन कारणों से भी डिस्टर्ब रहता है, उसको क्या फीड करना है, उनको पावरफुल कंटेंट फीड करना है, भगवान का नाम कीर्तन, जो कि इतना पावरफुल है कि हमारे मन को घेर के बैठ जाता है और फिर हमारा मन धीरे धीरे वश में आ जाता है। ये बिल्कुल प्रूवन, एस्टैब्लिश्ड, प्रैक्टिस्ड फैक्ट है, जो कि जो लोग इसका करते हैं उनको इनके इफेक्ट्स पता है, इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स। धीरे 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 अभ्यास है ना तो कौनते वारिज्ञान च ग्रहीते, भगवान कहते हैं कि अभ्यास यानी लगातार करने से, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेगा तो एक दिन में हो जाएगा, सालों की जितनी अच्छी क्वालिटी की प्रैक्टिस करेगा उसी प्रपोर्शन में वो धीरे धीरे अपने मन को वश में करता जाएगा, उसी प्रपोर्शन में धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स में वो स्टेबल रहना सीख जाएगा, उसी प्रपोर्शन में उसकी डिजायर्स कंट्रोल में आ जाएंगी, तो उसको वास्तविक हैप्पीनेस महसूस होगी। अभी तक हमने हासिल क्या किया, दुनिया जहान की चीजों में रख के अल्टीमेटली तो हमने डिस्टरबेंस हासिल किया है। तो अब जो भगवान उसी श्लोक में बात कर रहे हैं कि हमें स्टडी माइंड चाहिए, ट्रांसेंडेंटल स्टडी माइंड और ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस चाहिए, किसके लिए, पीस के लिए। और पीस जब आएगी तभी हमको हैप्पीनेस मिलेगी। तो अब योगियों की बात हो रही होती है तरह तरह की, इसी अध्याय में भगवान ने बात करी है कि
योगी सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं जो मेरे ऊपर फोकस करता है, मुझ पे ध्यान करता है। तो और आगे भगवान ये भी कहते हैं, द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड अपॉन मी verily attains highest happiness by virtue of his identity with Brahman. He is liberated, his mind is peaceful, his passions are quietened and he is freed from sin. पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी जो बेकार की इच्छाएं होती है सब शांत हो जाती, उसका मन शांत हो जाता है, हर जगह शांति होती है, और तब वो हाईएस्ट यानी परम प्रसन्नता को प्राप्त कर जाता है। तो और फिर भगवान कहते हैं कि वन हु रेस्ट्रेन्स हिज सेंसेस एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। इसका बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप आधा घंटा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, मान लिया आप जितने भी घंटे देते हैं, उसमें से अगर आधा घंटा उसमें से कट ऑफ करके या मिनिमाइज करके आधा घंटा ही भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो उसी से आपका इस इंटेलिजेंस यानी बुद्धि भी स्थिर, मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और इस सब के बाद में भगवान क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्दर्शिना। यानी कि इस पूरे प्रैक्टिस के लिए भगवान पूरा गीता का उपदेश भी दे रहे हैं और साथ में अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु का मतलब जो सेल्फ रियलाइज्ड हो, जिसने तत्व को जान रखा हो, और उससे ज्ञान हासिल करो, जिसने खुद प्रैक्टिस कर रखा हो, खुद गेन कर रखा हो। और उसके मतलब जैसे कि आप कोई भी प्रैक्टिस, योगा भी करते हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें तभी चलता है, नहीं तो अकेले तो लोग नहीं कर पाते। या कोई भी एक्टिविटी हो, गाइडेंस जरूरत पड़ती है, कभी कभी डेली गाइडेंस, कभी 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 की गाइडेंस जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं बस 1 मिनट और लेते हुए आज के सेशन को वाइंड अप करता हूँ। कहानी है एक जिन्न की, जो एक व्यक्ति को मिला, और वो जिन्न क्या था, किसी दीपक के अंदर था, जो अलादीन का जैसे मैजिक लैम्प था। तो उसमें एक बड़े छोटे में लिखा था कि भैया इसमें से जिन्न निकलता है, आपकी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप उसको इच्छाएं नहीं बताओगे, उसको कोई काम करने को नहीं दोगे, तो ये आपको खा जाएगा। तो भैया वो बालक बहुत परेशान, जिन्न को काम दो वो पूरा कर दे, कहते धन धान्य चाहिए, कहते ये लो, कहीं महल खड़ा करना है, कहते ये लो, खाने पीने का सामान चाहिए, ये लो, कहीं घूमना टहलना, फटाफट घूम फिर के आ गए, कहते ये लो। तो इस प्रकार से उसको समझ नहीं आया कि भाई अब मैं क्या करूं, ये जिन सब कुछ तो कर लिया। तो उसको एक आइडिया आया, कहते भाई एक सीढ़ी प्रकट करो। सीढ़ी प्रकट के कहते उसके ऊपर चढ़ो, कहते ऊपर चढ़ गए, कहते अब नीचे चढ़ो, उतरो। कहते ये तुम ऊपर नीचे तब तक करोगे जब तक मैं कुछ और सोच ना लूं, तब तक तुम्हारा बीच में इंटरवल्स में यही काम है। तो हमारा माइंड भी है, अगर हम उसको कुछ नहीं देते हैं करने को, तो वो फालतू के कार्य में, यानी कंस्ट्रक्टिव चीज, इवन अगर हम मटेरियल लेवल पे भी देखें, तो अगर आप खाली संगीत सुनते हो, उसके बजाय में अगर संगीत बजाते हो, तो आपकी प्रसन्नता अलग लेवल पे आएगी। खाली गाना सुनते हो और लेकिन अगर गाओगे तो एक प्रसन्नता अलग लेवल पे आएगी। खाली पढ़ते हैं, उसके बजाय में अगर जो कुछ पढ़ा है वो अगर एक पेज लिख लें, आपका सेटिस्फैक्शन दूसरे अलग लेवल पे होगा। तो इसी तरीके से माइंड को सिर्फ दबाना वर्क नहीं करता, माइंड को कुछ बेहतर करने को देना होता है, जो आपकी जो बुरी आदतें हैं या जो इन्फीरियर चीज हैं उनको ओवरकम कर सके। तो जैसा कि हम लोग जिस सिस्टम को बिलोंग करते हैं, उसमें हमारे गुरु ने यही सिखाया, सबसे पहला कि भाई आप आधे घंटे से शुरू करो, फिर बढ़ाते 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 जाओ। तो हम लोग माला लेके हर माला पे, हर मोती पे बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब क्या है कि इसमें श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया, कलिर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। यानी कि
कलयुग जिसमें हमने अभी बात करी थी कि पूरा डिस्टरबेंस है, इसमें एक महान गुण भी है कि हजारों साल लाखों साल की तपस्या में जो कुछ अटेन होता है वो सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से अपने घर बैठे बिना जंगल जाए आप भगवान के द्वारा बताए गए तरीके पे चल सकते हो, स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन कर सकते हो। इतना सिंपल प्रोसेस। अगर नहीं आपका काम करे तो आप गिव अप कर सकते हो, इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लगनी। मान लिया अगर चलो कहते भगवत गीता खरीदनी तो मुश्किल से 150-200 रुपए का खर्चा है, और यहाँ आप अपने जीवन को सुधारने के लिए लाखों लाखों खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से, और फिर ब्रह्मदेव ने कली संतारण उपनिषद में कहा है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केलम कलम नस्त्यम नस्त्य नस्ति गतर अन्यथा, यानी कि कलयुग में भगवान का नाम ही एक वर्केबल सॉल्यूशन है, करने वालों ने इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि अन्य कर्म कांड तपस्या इस कलयुग में संभव नहीं है। सतयुग में तपस्या था, और फिर क्या कहते हैं द्वापर में, त्रेता में यज्ञ आया, फिर द्वापर में भगवान की बड़ी बड़ी आरतियां की जाती थी। लेकिन कलयुग में भगवान का नाम लिया जाता है क्योंकि कलयुग के जीव इतने सिंपल तरीके से कार्य कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम उन सारे प्रोसीजर से ज्यादा इफेक्टिव है। यही कलयुग का बहुत महान गुण माना गया है। तो बहुत सारे लोग जो अकम्प्लिश सोल्स हैं कलयुग का इंतजार करते हैं कि कलयुग में पैदा होंगे और फिर सिंपल प्रोसेस से भगवान को अचीव करेंगे। और बस एक लास्ट लाइन कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें भगवान एक और चीज कहते हैं कि बैलेंस बना के रखना है। कि कैन योगी कौन है? अगर कोई बहुत खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत ज्यादा सोता है बहुत कम सोता है, वो योगी नहीं बन सकता। हर चीज में बैलेंस बना के चलने वाला व्यक्ति ही, यानी कि आप अपनी मटेरियल लाइफ और जब आप शुरू कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बना के चले और उससे आपको परफेक्शन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो कुछ भी 10 मिनट या 15 मिनट आई डोंट नो मैंने एक्सेस लिया है उसके लिए आई एम सॉरी। एंड उसके साथ अब अगर मैं चैट में देखता हूं कि कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चंस अभी भी पूछना चाहें तो उसे लिख सकते हैं, ताकि यथासंभव समय में अगर हम कुछ कर सकें तो उसका जवाब देंगे। धर्मराज जी, एक क्वेश्चन तो आया है। शिवांगी ने पूछा है कि अगर किसी को गुस्सा ही ना आता हो तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल ही है। गुस्सा आना कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। गुस्सा ना आना मतलब अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। और अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो यानी कि आप कुछ स्टेजेस तो ऑलरेडी पार कर चुके हैं। यानी कि आपके घर में कबाड़े नहीं खट्टा है, उसमें आप घर बसा सकते हैं, यानी कि भगवान को आसीन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान को हृदय में आसीन करने के लिए पहले घर से कबाड़े हटाना पड़ता है, तब जाके भगवान के लिए घर बन पाता है। यानी कि आप परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इट्स ऑल द गुड फॉर हर कि अगर ऐसा है तो वो फटाफट शुरू करें नेक्स्ट स्टेज। छोटी हैं काफी, बट एनीवे, कलयुग में माला फेरना कितना मतलब है? कितना मतलब है? हाँ, ये मुझे समझ। देखिए कलयुग में जैसा कि अभी शास्त्रों में कि मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए, तो सतयुग में लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी। इस तरह से नहीं होती थी कि बीमारी आई और निकल ली है, या 100 साल का ड्यूरेशन नहीं होता था। अभी अभी रेयर केसेस हैं, कुछ कुछ लोग 150 साल जीत जाते हैं, लेकिन सतयुग में बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन था। उसमें लोग ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि साधना करने या भगवान की तपस्या करने में डेडिकेट करते थे। वो उस समय वर्क करता था। आज जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है वो उसके रिजल्ट्स नहीं आते। वो चावल के सीजन में गेहूं उगाने के बराबर है। कुछ कुछ उगता दिखेगा आपको, कुछ कुछ महसूस होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से बड़े बड़े यज्ञ होते थे। आज आप शुद्ध देसी घी हासिल नहीं कर सकते, यज्ञ कहाँ से करेंगे? शुद्ध पेस्टिसाइड से भरे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, आहुति क्या डालेंगे? वो रिजल्ट ही नहीं आएगा।
ऑफेंड हो जाएंगे यज्ञ पुरुष, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ भी हो, कोई भी चीज आपको कोई भी बताए, आप ऐसे विश्वास मत करो, इसे अंधविश्वास कहते हैं। कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करोगे, खुद टेस्ट करके देखोगे। भाई खाने का क्या टेस्ट है, दूसरा क्या बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, खाओ, आपको मजाक कर सकता है। आप खुद खाओ, अगर आपके साथ टेस्टी भी है और उसके दूसरे दिन आपका पेट भी ना खराब हुआ हो, 2 टेस्ट हैं, तो यानी खाने की वस्तु ठीक है। तो उसी प्रकार से आप अगर माला फेरो तो उसको आपको उस समय तो अच्छा लगे ही लगे, और उस प्रोसीजर में करते करते कालांतर में टाइम के साथ भी आपकी जो अवगुण है वो दूर हो, आपका माइंड स्टेबल हो, तब जाके ये माना जाएगा कि वो प्रोसेस ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोले, उसको टेस्ट खुद करना है। और उसका टेस्ट ये है जो आज हमने कहा कि आपका माइंड स्टेबल होगा। अगर वो चीज हो रही है, आप सैड से या डिस्टर्ब से हैप्पी हो रहे हो, तभी वो चीज ठीक है। नहीं तो लोग तो बात, मैं 75 बातें करता हूँ, बहुत सारे लोग 75 बातें करते हैं, उस सबसे नहीं है। जैसे कि लोग साइंस पे भी अंधविश्वास करते हैं, धर्म पे भी अंधविश्वास करते हैं, क्योंकि किसी को कुछ मतलब मेहनत लगती है टेस्ट करने में। लोग अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहते, शुगर बढ़ी हुई निकलेगी, उसमें भी मेहनत लगती है। तो उसी तरीके से कोई भी चीज, माला फेरना या कुछ है, आधे घंटे का टेस्ट है, आधे घंटे का रूटीन आप कुछ दिन बना के देखिए, वर्कआउट आपको कुछ बेटर महसूस होता है तो बढ़ा दीजिए, आगे कीजिए। Mrs. Kakkad, you wanted to ask a question. You'll just have to type it in because somebody is asked. राजेंद्र जी ने पूछा है ध्यान लगाने की विधि के बारे में भी जानकारी दे दे। हाँ, देखिए ऐसा है कि ध्यान लगाने की जो विधि है, ध्यान किसी भी चीज में होता है। ध्यान लगाने की विधि का सबसे पहला स्टेप है श्रवण करना, यानी कि ध्यान से सुनना। अब क्या है कि आप जितना डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, जैसे कि आप मान लिया ये सेशन चल रहा था, तो आप क्या कर सकते हो, आपके मन को वश में नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते थे कि आप उतनी देर मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप नहीं चेक करते, या कुछ खाने पीने को नहीं लाते, ध्यान से सुनते रहते। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन डू एक्चुअली। ओके, ध्यान से श्रवण करना। जब आप श्रवण करते हो तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के दिन याद करें, आप अपने बच्चों को भी जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो याद करें, कि जो बच्चे क्लास में ध्यान से सुनते थे उन्हें घर पे कम पढ़ना पड़ता था, नहीं तो बाद में ट्यूशन करनी पड़ती है इस डेस्परेशन में कि पास हो जाए। तो उसी तरीके से आप अगर ध्यान पूर्वक ध्यान अपना लगाना चाहते हैं, जो हम लोग भी सालों से इस मतलब पूरे स्टेजेस में हैं, तो हमें बेसिक जो हियरिंग पे भी पूरा पूरा सेशन होता है। जो आपने अगर अच्छा टॉपिक किया तो फ्यूचर में हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हियरिंग पे ही करेंगे। हियरिंग से दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अकम्प्लिश हो जाती हैं। श्रवण और वचन बहुत बड़ी अपने में साइंस है, और आप जितना श्रवण करेंगे, और भगवान का जो नाम है, मान लिया 108 नाम है, अगर आप उसने 8 बार भी श्रवण किया तो उतना आपको बेनिफिट मिला। भगवान का नाम जब आप श्रवण करते हो तो आपके अंदर एंटर करता है, हृदय को साफ करता है, और हृदय को साफ करता है तो गंध रिमूव होता है, गंध रिमूव होता है तो अपने आप ध्यान स्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, इवन इफ यू सी रॉन्ग डन, if you don't show anger to protest, I think it's statement है कि अगर आप protest तो is it all right? I think स्वर्णा जी question? नहीं ठीक है, इसका जवाब है। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि जो पर्सन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, शास्त्र ध्यान से इसलिए पढ़ने पड़ते हैं, एक श्लोक के बजाय पूरी भगवत गीता इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि आपको कंप्लीट मैनुअल समझ में आ जाए। खाली एक इंस्ट्रक्शन पढ़ के अगर आप वॉशिंग मशीन ठीक करो, खराब कर दोगे। तो उसी तरीके से क्या है, टॉलरेंस इज वन थिंग, बट टॉलरेंस डजंट मीन कि आप गलत को टॉलरेट करें। ठीक है, आप अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप टॉलरेट कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी दूसरा व्यक्ति इफेक्टेड हो रहा है तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कीजिए। देखिए, हमने भी अपने बुक्स में एक बार ये पढ़ा था कि जो ढंग का व्यक्ति होता है
वो अगर कुछ गलत होता देखता है तो उसे सुधारने की कोशिश करता है, या उसको लगता है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता तो उस पर ध्यान नहीं देता, आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग खाली गॉसिप करते हैं और तमाशा देखते हैं, कई लोग क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, उनको कुछ हेल्प नहीं करनी है, खाली तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जाके उस व्यक्ति की मदद कर सकते हो, उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हो, या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, तो आप रुकिए, करिए। और नहीं तो आप चुपचाप निकल लीजिए, आपको लगता है आप नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग, ये दोनों ही लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं वो नेगेटिव है। जैसे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप खाली गॉसिप करके अगर हम आनंद लेते हैं उस बात का, तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग। तो एंगर या कोई चीज को जैसे कि डिसिप्लिन करने के लिए, आप अपने स्टाफ को डिसिप्लिन करने के लिए एंगर व्यक्त करते हैं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन, यानी कि आप अपना संयम मत खोइए। उसे सख्ती से बात अगर बोल रहे हैं तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो थैंक यू सो मच धर्मराज जी, आपने हर बार की तरह बहुत ही एनलाइटनिंग एंड सेशन लिया है। एंड आप इस तरह से समझाते हो कि हम सब ना उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें ना टाइम की सुध रहती है, ना पता लगता है कितना टाइम निकल गया है। एंड द वे यू वीव एवरीथिंग टुगेदर, कोई भी बात समझाने के लिए, चाहे वो स्टोरी के थ्रू हो, चाहे आप भगवत गीता से कुछ कुछ लेते हैं, बट बहुत ही खूबसूरती से आप बहुत नॉर्मल चीजें एक्सप्लेन करते, जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इट इज ऑलवेज ऑलवेज सो वंडरफुल लिसनिंग टू यू। एंड जो क्वेश्चंस भी अभी हमारे पास आए हैं, वेरी वेल एक्सप्लेन। सो जैसे अपने का माइंड कंट्रोल जो हम कह रहे हैं कि करना चाहिए, तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हम मन को नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो हमारे एनिमी के समान हो जाता है, शत्रु के समान बन जाता है, मन अशांत रहता है और उसे काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, ये सब जो बातें आपने बताई हैं उसको हम रखें अपने दिमाग में एंड वी फॉलो इट अप, तो obviously with practice we will be able to do what you are telling us to do. So बहुत ही enlightening सा जो session रहा, so thank you so much for it and thank you so much everyone for joining in. And I hope in fact I hope नहीं, I know it because I could see how enraptured you all were, इतने ध्यान से सुन रहे थे। I know थोड़ा सा लेट हो गया but कोई भी यहाँ से हिला नहीं है for dinner or anything. So I know धर्मराज जी के सेशंस हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत और अच्छे होते हैं and I wish we can get you more often to talk about various topics here. So thank you so much once again, and thank you so much everyone for joining in here today in this Elder Hour program on this Inspiring Tuesday. And now we will see you tomorrow at 7:25 p.m. for our Elder Hour program. And otherwise our more TV programs run as decided at 8 o'clock and 12 o'clock. And then evening I will see you all at 7:25. So till then, अपने मन को वश में करिए, जो धर्मराज जी ने बातें कही हैं उनको अच्छे से गांठ बांध ले, बिकॉज आई थिंक हम चाहे कितने भी बड़े हो जाते हैं, कितनी भी लाइफ हो जाती है हमारी, somehow हम ये चीजें कहीं कहीं पे छूट दे देते हैं, मतलब तो अगर इनको हम पकड़ लें तो हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। So धर्मराज जी, thank you so much once again for being here with all of us. For inviting. Thank you. Hope to see you again. Thanks, ma'am. Absolutely. Thank you so much.